Hello everyone. So today we will discuss about the fetal circulation. Okay, so fetal circulation is during pregnancy, the fetal circulatory system works differently than after birth. So the fetus is connected by the umbilical cord to the placenta, and this is the organ that develop and implants in the mother's uterus during pregnancy. So through the blood vessels in the umbilical cord, the fetus gets all needed nutrients and oxygen, and the fetus gets life support from the mother through the placenta. Okay, and the waste product and carbon dioxide from the fetus are sent back through the umbilical cord and placenta to the mother's circulation to be removed. Okay, so what is the definition of fetal circulation? The definition of fetal circulation is that is the circulatory system of a human fetus, often encompassing the entire fetoplacenta circulation, which include the umbilical cord and the blood vessels within the placenta that carry the fetal blood. ओके, तो फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है आपका, जो फीटस होता है उसमें क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन लंग्स में नहीं होता है, क्योंकि बिफोर बर्थ क्या होता है आपका, जो लंग्स होता है फीटस में वो इमेच्योर होते हैं. सो क्या होता है, जो आपका फीटस जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेता है वो कहाँ से लेता है आपका, थ्रू द प्लेसेंटा. Okay, so there are some special structures in fetal circulation. Placenta, where the gas exchange take place during the fetal life. umbilical artery क्या करती है आपका, ये क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा. ओके, एंड अम्बिलिकल वेन क्या करती है आपका, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस. ओके, क्लियर. आर्टरी क्या कर रही है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और जो अम्बिलिकल वेन होता है आपका वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को कहाँ कहाँ ले जाता है, प्लेसेंटा टू द फीटस. ओके, और यहाँ पे क्या आते हैं आपकी umbilical veins carry the oxygenated blood. ओके, आपके जो आपके फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है आपका, 2 umbilical आर्टरी होती है और एक umbilical वेन होती है. ओके, सो देयर आर 2 umbilical आर्टरी एंड 1 umbilical वेन. क्लियर. So there are 3 shunts present in a fetus. They are ductus venosus, ductus arteriosus and foramen ovale. ओके, सो जो आपका फोरेमन ओवल होता है वो क्या करता है आपका, कनेक्ट करता है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम को. देन ये क्या करता है आपका, ब्लड पुश करता है फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम. ओके, क्लियर. देन द डक्टस विनोसिस, जो डक्टस विनोसिस होता है आपका, इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन टू द inferior vena cava by the passing fetal liver, and the ductus arteriosus is carry oxygenated blood from the pulmonary artery to aorta by passing the fetal lung. So there are 3 shunts. The first one is ductus arteriosus, ductus venosus and the foramen ovale. These are the structure participate in a fetal circulation. Okay, then you can see here, this is the aorta, foramen ovale, lungs, pulmonary artery, ductus venosus, liver, and this is the umbilical cord which is attached to the placenta. Okay, lungs, ductus arteriosus. So you can see here, which is the red blood, that is oxygenated blood, and the rich blood, and which is the blue color is which is an oxygen poor blood, and the purple color is mixed blood. Okay, so now we will see the steps of fetal circulation.
Okay, so there are the some steps of fetal circulation बिफोर बर्थ. ओके, तो आपका क्या होता है इसमें, सबसे पहले क्या होता है आपका जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ब्लड विदाउट ऑक्सीजन. ओके, फ्रॉम द फीटस थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड दैट लीव्स द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल आर्टरी. क्लियर? क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लेसेंटा क्या कर रहा है, आपका जो ब्लड है वो क्या होते हैं विदाउट ऑक्सीजन, इट मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम द fetus through the blood vessels. Okay, so when the blood goes through the placenta, it picks up the oxygen and become the red. Okay, then आपका क्या होता है, the red blood then return to the fetus via the umbilical cord or umbilical vein. ठीक है, देन आपका क्या करते हैं, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड सॉरी जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है, प्लेसेंटा से फीटस में लेके जाती है. और जो अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल वेन लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है आपकी. ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पोर्टस जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, आपका पोर्टल वीनस ब्लड को ब्लड में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है. देन आपका जो डक्टस विनोसिस के थ्रू क्या करता है, वो इंफीरियर वेना कावा में जाता है. ओके, देन आपका जो ब्लड इंफीरियर वेना कावा से होकर कहाँ जाता है, आपके राइट एट्रियम में जाता है. ओके, सो ब्लड कमिंग फ्रॉम द फीटस बॉडी आल्सो एंटर्स द राइट एट्रियम, but the fetus is able to send this blue blood from the right atrium to the right ventricle, the chamber that normally pumps blood to the lungs. And most of the bloods that leaves the right ventricle in the fetus bypass the lungs through the second of the two extra fetal connection known as the ductus arteriosus. And the ductus arteriosus sends the bluer blood to the organ in the lower half of the fetal body, and this also allow for the bluest blood to leave the fetus through the umbilical artery and get back into the placenta and pick up to the oxygen. then आपकी फिर देन आपकी क्या हो जाएगी, साइकिल अगेन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जब आपका ब्लड क्या आ रहा है, आपका इंफीरियर वेना कावा में वेना कावा से आपका राइट एट्रियम में आता है. देन आपका क्या होता है, जो राइट एट्रियम से आपका 75% ब्लड क्या होता है, फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम में जाता है. ओके, फोरामेन ओवल से कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेंट्रिकल सिस्टोल के ड्यूरिंग क्या हो जाता है, आपका अरोटा में चला जाता है. ओके, जो देन और जो आपका 25% ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, आपका राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होकर वो कहाँ जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाता है. और जो आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा. ओके, देन जो लंग्स को ब्लड सप्लाई, देन वो क्या करेगा, आपको लंग्स को ब्लड सप्लाई करेगा. ओके, देन जो फीटस का पल्मोनरी आर्टरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो ब्लड डक्टस आर्टेरियोसिस से होके अयोटा में जाएगा. ओके, देन अयोटा से होके वो आपके कहाँ जाएगा, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से कहाँ जा रहा है, वो आपका अम्बिलिकल आर्टरी में. देन अम्बिलिकल आर्टरी से कहाँ चला जाएगा, वो आपके प्लेसेंटा में. ओके, देन ये साइकिल आपकी क्या होगी, अगेन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी. ओके, क्लियर? सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, जो अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जा रही है, प्लेसेंटा से फीटस में. देन अम्बिलिकल वेन लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को ब्लड सप्लाई करती है. देन यहाँ से आपका क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर्टल वीनस ब्लड में मिक्स हो जाता है. और उसके बाद क्या होता है, आपको जो डक्टस विनोसिस के थ्रू क्या हो जाता है, वो आपका इंफीरियर वेना कावा में आ जाता है. ओके, देन जो आपका इंफीरियर वेना कावा से वो आपका राइट
एट्रियम में जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? राइट एट्रियम में जाएगा। देन सेम वो 75% ब्लड आपका फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और जो आपका 25% ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल से होकर राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ओके, देन अयोटा में, देन अयोटा से आपका हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज में, देन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से आपका अम्बिलिकल आर्टरी, देन प्लेसेंटा। ओके, क्लियर? सो दिस वाज द फीटल सर्कुलेशन बिफोर द बर्थ। देन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिस इज अ फीटल हार्ट एंड दिस इज द न्यूबॉर्न हार्ट। तो डिफरेंस इज हेयर, जो आपका फीटल हार्ट होता है उसमें आपका जो फोरामेन ओवल होता है दैट इज ओपन, डक्टस आर्टरियोसिस इज ऑल्सो ओपन, एंड यू कैन सी हेयर in newborn heart after birth the foramen oval is closed and the ductus arteriosus is also closed. Okay, तो आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है आपका यहाँ पे? आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, जो आपकी कॉर्ड क्लैम्प वो क्या हो गया यहाँ पे कट हो गया है। देन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एट द बर्थ, सो मेजर चेंजेस टेक प्लेस and the umbilical cord is clamped and the baby no longer receive oxygen and nutrients from the mother। जैसे ही आपका कॉर्ड कट क्लैम्प होगा वहाँ पे कट होगा, तो जो जो मीन्स जो प्रोसेस हमारी पहले चल रही थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, मीन्स जो हमारा जो फीटल क्या कर रहा था आपका, जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा था वो आपका फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो आफ्टर बर्थ स्टॉप हो जाएगा। एंड विद द फीटस विद द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ एयर the lungs start to expand and the ductus arteriosus and the foramen oval both close हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया आपका? then the baby circulation and blood flow through the heart now function like an adult। ओके, देन आपका कौन सा हो जाएगा, स्टार्ट ब्लड सर्कुलेशंस। अभी तक आपका क्या हो रहा था, फीटल सर्कुलेशन हो रहा था, देन आफ्टर वो एडल्ट लाइक का एडल्ट फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है कि बच्चा फर्स्ट ब्रेथ कब लेता है, आफ्टर बर्थ। ओके, तो आपके वहाँ पे चेंजेस ऑफ फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ, जो आपका प्लेसेंटल ब्लड फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है, एंड आपका क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स बेबी का जो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो होगा वो स्टॉप हो जाएगा और जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड व्हाट हैपन्स टू द शंट्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके, क्या हो जाएगा आपका, डक्टस विनोसिस आपका क्लोज हो जाएगा, फोरामेन ओवल आपका क्लोज हो जाएगा, और डक्टस आर्टरियोसिस आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, सो देयर आर सम फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग और एनाटॉमिकल क्लोजिंग। ओके, जो आप अगर आपको फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग में देखेंगे तो जो आपका डक्टस विनोसिस है वो आपका 5 मिनट के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, एंड द फंक्शनल क्लोजर अकर विद इन अ मिनट ऑफ बर्थ, मीन्स आफ्टर 5 मिनट्स वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोजर हो जाएगा। Okay, and the structural closure occur within a 3 to 7 days, and after it close the remnant is known as ligamental venosus. Okay, and the closure of ductus venosus is caused by the strong contraction of muscles wall of ductus venosus, but the cause of this contraction is not revealed yet. Okay, तो एनाटॉमिकल चेंजेस में क्या आ रहा है आपका, वो 3 to 4 वीक्स में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, और फंक्शनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या हो रहा है, फंक्शनल क्लोजर विद इन अ मिनट ऑफ बर्थ, सो दैट इज द डक्टस विनोसिस, क्लोजर ऑफ डक्टस विनोसिस, एंड द नेक्स्ट इज क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस। ओके, तो क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस इज बाय द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपका कब क्लोज होता है, 1 से 3 मंथ के, आफ्टर 1 to 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। ओके,
Clear? So at the birth, opposite direction of blood flow from the aorta to pulmonary artery supply more oxygenated blood than before. Okay. और जो आपका कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स वो अकर्स होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ oxygen, and the degree of smooth muscles contraction is highly dependent on more availability of oxygen. ओके सो क्या होता है आपका, जैसे ही आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है कट होती है तो देयर इज द चांसेस ऑफ हाइपोक्सिया, बिकॉज वहाँ पे क्या हो जाती है हमारी ऑक्सीजन की क्या हो जाती है कमी हो जाती है. ओके देन द क्लोजर ऑफ द फोरेमन ओवल. सो फोरेमन ओवल क्या होता है आपका, द बिफोर बर्थ द फोरेमन ओवल अलाउ द मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द right atrium from the inferior vena cava to pass into the left atrium. Okay, so closes at birth due to the decrease flow from placenta and inferior vena cava to hold open foramen. बिफोर बर्थ क्या हो रहा था, या आपका मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था किसमें, राइट एट्रियम फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा. लेकिन आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज हो रहा है फ्लो. ओके सो मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो and a pulmonary venosis returns to the left heart causing the pressure in the left atrium to be higher than in a right atrium. Okay, so the increased left arterial pressure then close the foramen oval against the septum secundum, that is between the right and left atrium, and the outward from the right ventricle. Now the flow entirely into the pulmonary circulation. Okay, तो जो आपका फोरेमन ओवल होता है वो कब क्लोज हो जाता है आपका, आफ्टर 1 ईयर बर्थ के. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फीटल सर्कुलेशन. ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर बर्थ आपका क्या हो रहा है एंड आफ्टर बर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कट. तो जो आपका आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगी, जो फीटल सर्कुलेशन किस में चेंज हो जाएगा आपका, ब्लड सर्कुलेशन में चेंज जाएगा. तो लाइक का एडल्ट वो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.